Yes, good evening, everyone. So let's start with the first theory of the geometry, and that is tangent segment theorem. Okay, तो let's start with the tangent segment theorem. क्या ये segment theorem कहता है? A tangent segment drawn from the external point to the circle are congruent. तो ये हमारा circle है, and we are having one external point which is outside the circle. ये point से when you draw two tangents, okay, so the tangent का जो distance जो segment AP है that will be equal to segment PB. Tangent का segment will be equal to each other if they are emitting from same point which is outside the circle. Got it everyone? सबको समझ में आ गया? या अगर ये थ्योरम आपको बोला जाए to prove, how you are going to prove this? For that you need a circle. तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, तो गिवन में मैं लिखूंगा. After that I have drawn a point P which is outside the circle, and I am going to draw two tangents, tangent 1, tangent 2. ये ड्रॉ करने के बाद you have to prove that tangent segment PA will be congruent to tangent segment PB. क्या कंस्ट्रक्शन आप करोगे? कम ऑन टेल मी. क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? तो जो मिसिंग है यहां पे, इफ यू सी ध्यान से, देन यू विल कम टू नो दैट A and OB I can construct. और जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्ट किया, वी आर अवेयर कि OA and OB will be perpendicular to the tangent. और एक चीज हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, we can draw OP also. As we are aware that radius और tangent जहां पे मीट होते हैं वहां पे 90 डिग्री बनता है. तो बताइए कितने ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं फिगर में? यस राइट, दो ट्रायंगल्स. और ये दो ट्रायंगल्स को we will prove congruent. By which test? Let's see. The very first is दोनों ट्रायंगल के पास 90 डिग्री है. तो we can write down that angle PAO is equal to angle PBO and the reason is 90 degree. और कौन सी चीज कॉमन है? यस, बोथ दी ट्रायंगल्स आर शेयरिंग कॉमन साइड, बट ये साइड कोई नॉर्मल साइड नहीं है. दिस साइड इज एक्चुअली अपोजिट टू 90 डिग्री. दैट्स व्हाई इट्स हैज अ स्पेशल, उसको एक स्पेशल नाम है. दैट स्पेशल नाम इज hypotenuse OP will be congruent to hypotenuse OP. कॉमन साइड है ना, तो उसको स्पेशल नाम क्यों है? बिकॉज इट इज अपोजिट टू 90 डिग्री. और कौन सी चीज कॉन्ग्रुएंट दिख रही है ट्रायंगल में? लेट्स सी. यस, OA will be congruent to OB and the reason is they both are the radii of the same circle. I will ask you a very simple question कि ये दोनों triangle will be congruent by which test? Perfect. They will be congruent by, this both the triangle will be congruent by hypotenuse side test. Because hypotenuse word आया, तो hypotenuse word आने की वजह से they are congruent by hypotenuse side test. और जैसे ये दो triangle congruent हो गए, now we can say that segment PA will be congruent to segment PB and this both are tangent segments. तो हमारा मिशन कंप्लीट हो गया. And the reason is CSCT. Got it everyone? सबको समझ में आ गया? Yes. Now let's move. The sum will come for 3 marks. Problem set का fifth sum.
Quadrilateral ABCD is a parallelogram. तो ये ABCD parallelogram है. Okay, so it is clearly indicating that we are going to use parallelogram के properties. After that, it circumscribe the circle with center T. Point E, F, G, H are touching point. तो ये जो circle है, this circle is actually touching the parallelogram at E, F, G, H. Okay. If AE is 4.5, EB is 5.5, then what will be AD? But अगर मैं AD को ध्यान से देखता हूं, then I come to know that this AD is actually divided into two parts, AH और HD. अगर मुझे AH and HD दोनों साइड्स के लेंथ मिल गए, then sum is complete. Let's see मुझे मिलता है क्या. मैं पहले देखता हूं ये AH, ओके ये AH और ये AE. ओ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सर्कल के बाहर है पॉइंट ए और वहां से दो टैंजेंट इमिट हो रहे हैं. So can now we say that this tangent segments will be congruent to each other, and there is this tangent segment theorem. Yes, can I say that? ओके, ध्यान से देखना. अगर AE is 4.5, अगर AE is 4.5 तो AH कितना हो जाएगा? 4.5. Okay, and the reason is tangent segment theorem. तो मुझे AH फाइनली मिल गया. नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स HD. देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता. चलो अभी ये दो साइड्स देखो ध्यान से. अगर BE is 5.5 तो BF कितना होगा? यस, कितना होगा? Perfect, 5.5. Very good. Now let's concentrate on this two sides, BH and DG. क्या इस साइड्स के कोई लेंथ, इस सेगमेंट के कोई लेंथ आपको मिले हैं? क्या मेंशन किए हैं? नो. अगर मेंशन नहीं किए हैं तो वी कैन राइट इट डाउन दैट लेट DH एंड DG के लेंथ भी x. तो ये हो जाएंगे x. Then we will move to the one more pair. ये भी tangent segment का pair है, तो ये दोनों tangent segment भी equal हो जाएंगे. बट इनके कोई डिस्टेंस दिए है आपको? यस, नो. तो लेट दिस टू tangent segment के लेंथ एज वेर अवर दे आर इक्वल टू ईच अदर, बट इनके लेंथ नहीं दिए तो लेट दैट लेंथ बी y. ओके, बट स्टिल वी वांट HD. कैसे मिलेगा HD? चलो देखते हैं. आप ध्यान से देखो. एज दिस रीजन लिखेंगे tangent segment theorem, पर ध्यान से देखना फिगर में. एज दिस वोल फिगर में पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए. पहली प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम इज opposite sides are parallel to each other. Second property is opposite sides are congruent to each other. Okay, so as this quadrilateral ABCD is a parallelogram, opposite sides are congruent to each other. तो मैं लिखूंगा AB is equal to DC. AB कितना है? AB is divided into two parts, that is AE plus BE. BC कितने पार्ट्स में डिवाइड है? टू पार्ट्स, DG प्लस CG. ओके, AE कितना है? 4.5, BE 5.5, DG कितना है? X, CG कितना है? Y. 4.5 plus 5.5 is 10.
So x plus y is equal to 10. This is equation number 1. Leave it as it is. जैसे ये दो साइड्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, वैसे ही यहां पे और दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे, दैट इज AD and BC. But this AD is actually divided into two parts. AH plus DH is equal to BC भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, BF plus CF. Okay, AH is 4.5, DH is X, BF is 5.5 and CF is 1. Okay, थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं मैं इक्वेशन. X minus y is equal to 5.5 minus 4.5 and it will give you 1. This is equation number 2. तो हमें दो इक्वेशंस मिले हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. क्या इक्वेशन के साथ आप करोगे? व्हाट यू विल डू विद दिस इक्वेशन? आर्यन यादव. यस, आप क्या करोगे? यू विल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. तो चलो ऐड करते हैं. x plus y is equal to 10 plus x minus y is equal to 1. क्या कैंसिल होगा? चलो बताइए. y will get cancelled. y कैंसिल हो गया. x plus x is 2x, 11. So x is equal to 5.5. तो चलो मुझे बोलो, क्या हमें HD मिल गया? यस, क्या हमें HD मिल गया? यस, हमें HD मिल गया, दैट इज 5.5. इसको मैंने अज्यूम किया था एज x. ओके, नाउ हमें AH भी मिला, SD भी मिला. वी जस्ट नीड टू ऐड ऑन. चलो देखते क्या आंसर आता है. AH कितना मिला? 4.5. HD कितना मिला? 5.5 and that will give you 10. तो फाइनली हमें AD का लेंथ मिल गया, दैट इज 10 यूनिट्स. And this sum will come for 3 marks. Got it everyone? सबको समझ में आ गया? क्या बहुत हार्ड है? सर्कल? नॉट एट ऑल. चलो तो आगे बढ़ते हैं. अभी हम कुछ थियोरीज पढ़ेंगे. ये हमारी पहली थियोरी, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल. क्या होता है ये थ्योरी में? सर्कल इफ दे आर टचिंग एक्सटर्नली, तो ये हमारा फर्स्ट सर्कल, ये हमारा सेकंड सर्कल. अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो हाउ यू विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम? इट्स वेरी सिंपल. पहले सर्कल, बड़े वाले सर्कल, ऑरेंज सर्कल का रेडियस इज R1, ब्लू वाले सर्कल का रेडियस इज R2. if you need to find out the distance between them, formula is very simple. Distance is nothing but OA and the formula is R1 plus R2. अगर दो सर्कल का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला इज R1 plus R2. दो रेडियस को ऐड करो. बट अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं, दिस इज सर्कल 1, सर्कल 2. अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? ये है OT, विच इज R1, and this AT is actually R2. हमें डिस्टेंस फाइंड करना है किसका? दो सर्कल का. दो सर्कल का डिस्टेंस इज नथिंग बट OA and the formula is R1 minus R2. Okay, चलो फिर से रिवाइज करते हैं. इफ सर्कल touches each other externally, what will be the formula? Will the radius will get added or subtracted? Perfect. अगर सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, what will be the formula? सब्ट्रैक्ट होगा रेडियस या ऐड होगा? वेरी गुड. चलो आगे बढ़ते हैं. Look at this sum, a very beautiful sum.
over here, circle with center M touches the circle with center N at point T. तो हमारे पास दो सर्कल्स है और दोनों सर्कल इंटरनली टच कर रहे हैं. तो यू आर अवेयर अबाउट विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. This radius RM touches the smaller circle at point S. तो ये रेडियस तो है एज वेल एज फॉर द स्मॉलर सर्कल. बताइए क्या है. It's a tangent. Perfect. Radii of the circles are 9 centimeter and 2.5 centimeter respectively. तो बड़ा सर्कल का रेडियस इज 9. अगर RM अगर 9 है तो TM कितना होगा? कम ऑन टेल मी. 9 होगा. आफ्टर दैट जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस इज 2.5. 3 क्वेश्चंस आपको दिए. फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT, फाइंड द लेंथ ऑफ MN, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल NSM. विल फाइंड इट आउट. पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MT. चलो बताइए MT का लेंथ कितना होगा. वेरी सिंपल. अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस MT इज एक्चुअली इक्वल टू द रेडियस RM. That's why MT will be 9 centimeter. उसके बाद पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ MM. चलो आप MM को देखते हैं ध्यान से. ओ MN को फाइंड करने के लिए कौन से वैल्यूज आप यूज करोगे. अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस MN इज एक्चुअली पार्ट ऑफ MT. तो मैं लिखूंगा कि MT is divided into two parts. First is MN and second is NT. And now we are going to use the theorem of touching circle का concept. Okay? MT कितना है 9, NT कितना है 2.5. सब्ट्रैक्ट करो और हमें MN मिल गया. That is 6.5. Got it everyone? Yeah. तो second question भी done हो गया. Now let's move to the third question. क्या पूछा है? Find the measure of angle NSM. NSM ऐसा कोई एंगल फिलहाल दिख रहा है आपको फिगर में? यस, आपको फिगर में दिख रहा है. नो तो कंस्ट्रक्ट करो. लेट्स कंस्ट्रक्ट. तो मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया. तो अभी NSM मुझे दिख रहा है फिगर में. ये NS तो रेडियस है और ये RM tangent है. When radius and tangent meet each other, कितना डिग्री बनता है? Yes, perfect. तो हमें NSM का एंगल भी मिल गया. NSM will be 90 and the reason is tangent theorem. सम खत्म नहीं हुआ है, और भी कुछ पूछा गया है. उन्होंने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ MS अपॉन SR. MS is to SR. रेशियो फाइंड करने के लिए वी शुड हैव वैल्यूज. ना MS का वैल्यू है ना SR का वैल्यू है. वी विल फाइंड इट आउट फर्स्ट. ध्यान से देखना मैं कैसे फाइंड करता हूं. MS का भी वैल्यू नहीं, SR का भी वैल्यू नहीं. तो पहले हम MS का फाइंड करते हैं. फाइंड कर सकते हैं क्या MS? चलो देखते हैं. Oh, this MS is a part of the right angle triangle. NM का तो मेरे पास है लेंथ दैट इज 6.5. बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस NS? क्या इसका लेंथ भी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है इनडायरेक्टली? ओके, कितना है? कम ऑन टेल मी. यस, स्मॉल सर्कल का रेडियस इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 2.5. तो NS इज ऑल्सो रेडियस, तो वो भी 2.5 हो जाएगा. चलो नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम.
That is in triangle NSM, angle NSM is 90 degree. That's why side 1 का square plus side 2 का square is equal to hypotenuse का square. MS we don't know. SM yes, that is 2.5. MN is 6.5. 6.5 minus 2.5 देखते हैं कितना होता है. Is it looking like a square minus b square? Yes. So it will be a plus b, a minus b. 6.5 plus 2.5 will give you 9. 6.5 minus 2.5 will give you 4. Oh, 9 4s are 36. तो कितना हो जाएगा ms will be 6. 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर. तो हमें ms मिल गया. Got it everyone? सबको समझ में आया? Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ms तो मिल गया. अभी हमें चाहिए rs. How you will get rs? इसको किससे माइनस करोगे? अगर आप ध्यान से देखोगे मुझे RS चाहिए और ये RS एक्चुअली RM का एक पार्ट है. RM का डिस्टेंस मेरे पास ऑलरेडी है इन द क्वेश्चन, दैट इज 9 सेंटीमीटर. अगर मैं 9 को अगर मैंने 6 के साथ सबट्रैक्ट किया तो क्या मुझे RS मिल जाएगा? फिगर को देख के आंसर आना चाहिए. यस, परफेक्ट. तो लेट्स डू. अगर आप ध्यान से देखोगे दिस RM is divided into two parts. The first is MS, second is SR. I'm having RM ka length that is 9, MS is 6. You just simply subtract the both numbers. 9 minus 6 will give you 3. You have got SR. SR भी मिल गया. अभी आप रेशियो इजीली फाइंड कर सकते हो. That is MS upon SR is nothing but 6 upon 3. Compress कीजिए. 3 ones are, 3 twos are. Ratio will be 2:1. Clear? All of you? बहुत easy sum है. No issues with the circle. Good. चलो आगे बढ़ते हैं. Very beautiful sum. And trust me, this sum has come many times in the exam. Circle with center A and center B touches each other at point E. Okay, तो दो circles है which are touching each other, but दोनों circles externally placed है. उसके बाद line L is the common tangent which touches the circle C at C and D respectively. तो दोनों सर्कल एक ही tangent शेयर कर रहे हैं but they are touching at distinct points. Find the length of CD. आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको length of CD if the radii of the circles are 4 centimeter and 6 centimeter respectively. आपको CD फाइंड करना है. करेंगे, बट उससे पहले क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? What you will construct? अगर आप ध्यान से देखोगे then you will come to know that you have to construct. दो सर्कल एक्सटर्नली मीट हो रहे हैं तो दोनों का डिस्टेंस हमें कनेक्ट करना पड़ेगा. So I'm going to write it down and the reason is theorem of touching circle. ये हो जाने के बाद अब थोड़ा गौर से देखना कि यहां पे ये AB is divided into two parts, that is AE plus BE, and it will give you 4 plus 6, that is 10 centimeter. तो पूरा AB बन जाएगा 10 सेंटीमीटर. ओ, रेडियस और टैंजेंट फिर से मीट हो गए तो यहां पे 90 डिग्री बन गया. लुक,
इन द बिगर सर्कल, यहां पे भी रेडियस और टैंजेंट कनेक्ट हो गए, 90 डिग्री बन गया। ओके, गुड। देखो अभी इमेजिनेशन बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। मुझे सीडी का लेंथ चाहिए, तो सीडी के लेंथ को फाइंड करने के लिए मैं यहां पे एक इमेजिनेशन करूंगा। आप भी देखिए फिगर में, ये जो सीडी है फिलहाल जो आपको दिख रहा है, क्या मैं उसको ऐसे नीचे ला सकता हूं? कैन आई? यस, दो परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर्स हो गए लाइन, मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो मैं नीचे ला सकता हूं और ये नीचे आ जाएगा और यहां पे बन जाएगा ए एफ की लाइन, एंड दैट एफ विल बी परपेंडिकुलर। ओके, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस और नो? यस, तो ये इमेजिनेशन है। ओके, तो मैंने इमेजिन कर दिया। जैसे मैंने इमेजिन कर दिया, देन आई केम टू नो दैट ये पूरा सीडी में नीचे प्लेस कर सकता हूं, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में पैरेलल लाइंस। तो मैंने नीचे लाया, जहां तक आ सकता है मैंने वहां तक लाया, एंड हियर इट इज एएफ। और जैसे मैंने एएफ को लाया, देन आई केम टू नो दैट, मैं अभी प्रूव करूंगा कि यहां पे इन दिस क्वाड्रिलैटरल angle ACD is equal to 90 degree. FDC is also equal to 90 degree, and that is a tangent theorem, and AFD is equal to 90 degree just because of the construction. तो सब तीन एंगल्स 90 डिग्री बन गए क्वाड्रिलैटरल में, तो रिमेनिंग एंगल भी कितना बन जाएगा? इट विल बी 90 डिग्री, दैट इज एंगल FAC। 90 डिग्री बन गया। ये बन जाने के बाद ये पूरा क्वाड्रिलैटरल बन जाता है रेक्टेंगल। दैट्स व्हाट आई वांट, कि ये रेक्टेंगल बन जाए। ओके, तो ये रेक्टेंगल तो बन गया। ओके, फाइन। तो सुनो, आप ध्यान से देखना, ये अगर रेक्टेंगल बन गया है तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर व्हाट टू ईच अदर? रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर congruent या equal to each other, मतलब this FD will be equal to AC। FD अगर 4 है, AC अगर 4 है, तो FD हो जाएगा 4। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो मुझे ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, अगर मैंने ये AF फाइंड कर दिया तो ऑटोमेटिकली आई विल गेट CD। बट ये AF कैसे मिलेगा? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सेगमेंट AB ऑलरेडी 10 दिया गया है, तो हमने फाइंड कर लिया, बट मेरे पास सेकेंड साइड नहीं है, तो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस FB। आप मुझे बताइए हाउ यू विल फाइंड आउट दिस FB, कौन से वैल्यूज को यूज करोगे? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस FB इज अ पार्ट ऑफ BD। दिस BD is divided into two part, that is BF, मतलब FB plus DF। BD कितना है? 6। BF we don't know। FD कितना है? 4। तो 6 minus 4 will give you 2, तो PF हमें मिल गया। Can now we use Pythagoras theorem? क्या मैं यूज कर सकता हूं? यस, चलो तो यूज करते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। As this angle is 90 degree, that is hypotenuse का square is equal to side 1 का square plus side 2 का square। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। This is 10, BF is 2, 10 का square is 100, 2 का square is 4, 10 minus 4 is 96। 96 का प्योर स्क्वायर नहीं है, तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा 96 into 2, that is 16 into 6। 16 बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी 4√6। तो स्टूडेंट, अगर AF 4√6 मिला है, टेल मी व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ CD? Yes, what will be the length of CD?
The length of CD will be, as they are opposite sides of the rectangle, they are equal to each other. That is, AF will be equal to CD, तो CD हो जाएगा 4√6. Got it everyone? तो हमें CD finally मिल गया. So easy, perfect. Yeah. This sum will come for 3 marks. बहुत easy sum है. No need to worry about it. अभी हम बात करेंगे आर्क के बारे में. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि सर्कल का टोटल डिग्री कितना है? मेजर ऑफ द सर्कल. परफेक्ट. ओके, तो मेजर ऑफ द सर्कल इज 360 डिग्री. देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द सेमी सर्कल? Yes, the measure of the semicircle is 180 degree. तो measure of the arc ABC कितना होगा? वो भी हो जाएगा 180 degree. But what will be the measure of this arc, which is the minor one, DC? आप कैसे find करोगे? तो many a times in the questions they will give you central angle. Central angle कौन सा angle होता है? जो center of the circle से बनता है, उसको बोलते हैं central angle. और ये सेंट्रल एंगल और उसके ऑपोजिट आर्क का देयर इज अ रिलेशन. इफ सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री तो उसका ऑपोजिट आर्क कितना होगा? कम ऑन टेल मी. इट विल बी 60 डिग्री बिकॉज वी नो दैट सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग या ऑपोजिट आर्क. ओके, तो ये 60 डिग्री मिला. बट if I ask you to find out major arc, देखो ये DC माइनर है, मतलब छोटा आर्क है ना. मेजर मतलब बड़ा, माइनर को छोड़ के जो हमें आर्क फाइंड करना है बड़ा वाला, उसको बोलते हैं मेजर आर्क. ओके, तो कैसे फाइंड करोगे मेजर आर्क? किससे माइनस करोगे मेजर आर्क? व्हाट यू विल डू विद द मेजर आर्क? देखो इट्स वेरी सिंपल. 360 में से माइनर आर्क को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए. Simply subtract the minor arc from the major arc. You will minor arc from the 360. You will get major arc. Okay, इतना सिंपल सा रूल है. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर. We are having two circles over here, and both these circles are having chords, chord AB और chord CD. रूल बहुत सिंपल है. If these two chords are equal to each other, if these two chords are equal to each other, then their opposite arc will be equal to each other. Okay, got it everyone? सबको समझ में आ गया concept? If two chords are equal to each other, then their opposite arc are equal, yeah, congruent to each other. Got it everyone? Yes. Okay. अभी इस थ्योरम का हम उल्टा थ्योरी यूज करेंगे. ऐसे भी हो सकता है ना, इन सर्कल में, सर्कल नंबर 1, एक ही सर्कल में अगर उन्होंने ऐसे बोला, if two arcs are equal to each other, arc BPA, if it is equal to the arc CQD, then their respective chords will also be equal. Previous theorem का उल्टा वर्जन, vice versa, converse version. Got it everyone? Yes. अगर chord equals तो arc equal, अगर arc equal तो chords equal. Simply ये माइंड में रख देना.
Now we are going to talk about the inscribed angle, a very important theorem, inscribed angle. Measure of an inscribed angle is half of the measure of its intercepted arc. तो ये हमारा सर्कल है. Inscribed angle is always formed on the circumference of the circle. Inscribed angle हमेशा सर्कल के circumference पे ही बनता है और इसका रिलेशन है उसके ऑपोजिट आर्क से. Inscribed angle is always half of its intersected arc, मतलब उसका ऑपोजिट आर्क. Inscribed angle is always half of the intercepted arc. कौन सा intercepted arc? Arc AXC. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर ये आर्क AXC 60 डिग्री है तो इंस्क्राइब्ड एंगल कितना होगा? अगर ये आर्क, सामने वाला आर्क अगर 60 डिग्री है तो इंस्क्राइब्ड एंगल कितना होगा? Perfect संस्कार, it will be 30 degree, not 120 or 180. Inscribed angle is always half of its opposite arc. Inscribed angle is always half of its intercepted arc. अगर उसका opposite arc अगर 60 है तो inscribed angle उसका आधा होगा 30. चलो आगे बढ़ते हैं. ये है हमारा सम. Okay. In a circle, length of chord AB is equal to its radius of the circle. Very important statement. देखो स्टेटमेंट क्या बोला है. ये जो दो रेडियस आपको दिख रहे हैं ना, OA, OB, ये दोनों रेडियस दे आर इक्वल टू इट्स कॉर्ड AB. मतलब ये तीनों साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होगी. आपको पहले फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल AOB. कैसे करोगे? हिंट तो पहले ही दे दी. कम ऑन, फाइंड इट आउट. मैंने क्या बोला था? आई जस्ट सेड इट राइट नाउ कि if you see this OA is equal to OB, radii of the same circle, and this chord AB is equal to their radius. मतलब ये तीनों sides are now equal to each other. AB will be equal to OA, it will be equal to OB. ये तीनों sides equal है. Oh, ये तीनों sides equal है, मतलब ये, oh, this is the sides of the triangle. तो ये कौन सा triangle बन गया? It will be equilateral triangle. और equilateral triangle में इंटीरियर एंगल्स हमेशा कितने डिग्री होते हैं? 60 डिग्री. तो एंगल AOB इज 60 डिग्री. तो पहला एंगल तो हमें मिल गया. दैट्स अमेजिंग. अभी हमें फाइंड करना है आर्क AB. कम ऑन, टेल मी. अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, टेल मी व्हाट विल बी द मेजर ऑफ आर्क AB. As we are aware that central angle is always equal to its corresponding arc by the definition of the measure of a minor arc. Okay, अगर angle 60 है तो arc 60 होगा. Now let's move to the angle ACB. Oh, ACB. Okay, ये circumference पे टच हो रहा है. Oh yes, this is an inscribed angle. Inscribed angle है और inscribed angle उसके intersected arc का क्या होता है? हाफ होता है. अगर उसका intercepted arc अगर 60 है, we are aware that inscribed angle is half of its measure of an arc, intercepted arc. It is always half of the intercepted arc, that is 2 1s are 2 30s are, ACB is 30 degree. Very good. अभी उन्होंने बोला है to find the arc of ACB. First of all tell me ये ACB major arc है कि minor arc है?
It's a major arc. And how you will get the major arc? मेजर आर्क अगर आपको चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि सर्कल सर्कल के दोनों आर्क अगर आप ऐड करोगे टोटल आर्क इट विल गिव यू 360 डिग्री। एसीबी तो मेरे पास नहीं, तो वही तो मुझे फाइंड करना है। मेजर ऑफ आर्क ए बी है मेरे पास, दैट इज 60। 360 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए एंड यू विल गेट मेजर आर्क एसीबी, दैट इज 300। यस, सबको समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू? या गुड। 3 मार्क के लिए आएगा। अभी हम कोरोलरीज बात करते हैं, वो इंस्क्राइब्ड एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट कोरोलरीज। देयर आर सम रूल्स ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। पहला रूल ये है कि अगर इंस्क्राइब्ड एंगल सेमी सर्कल के अंदर हो, सी व्हाट आई एम टेलिंग, इफ इंस्क्राइब्ड एंगल अगर सेमी सर्कल के अंदर हो तो वो हमेशा 90 डिग्री होता है। सिंपल, आपको सिंप्लीफाई करके दे दिया। If inscribed angle is in semicircle तो वो 90 डिग्री होता है। ओके, उसके दोनों के दोनों जो कॉर्ड्स है वो सेमी सर्कल के अंदर होने चाहिए। इट विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? यस। If inscribed angle is in semicircle, it will always be 90 degree. ठीक है, inscribed angle in a semicircle is a right angle. अभी मैं इमेजिन करिए कि मैं अभी यहां पे मूवमेंट करूंगा। जैसे मैंने इस पोजीशन पे लाया तो मुझे बताइए कितना डिग्री होगा। टेल मी द डिग्री। परफेक्ट, 90 डिग्री होगा। अगर मैंने इस एंगल का पोजीशन मैंने चेंज किया ओवर हियर तो ये कितना डिग्री होगा? यस, परफेक्ट, 90 डिग्री। गॉट इट? यस। इंस्क्राइब्ड एंगल का और एक रूल, ये रूल क्या कहता है कि सपोज देयर आर टू इंस्क्राइब्ड एंगल। ये है इंस्क्राइब्ड एंगल नंबर 1, ये है इंस्क्राइब्ड एंगल नंबर 2। अगर दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल सेम आर्क शेयर कर रहे हैं, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल पी क्यू आर इज शेयरिंग पी आर विथ इंस्क्राइब्ड एंगल पी एस आर। देखो, दोनों इंस्क्राइब्ड एंगल्स आर शेयरिंग सेम आर्क। तो अगर दो इंस्क्राइब्ड एंगल का एक ही आर्क है, सेम आर्क है, it means this both the inscribed angles are equal to each other. Okay, if inscribed angles are sharing same arc, then those inscribed angles are equal to each other. इतना सिंपल सा रूल है। ओके, थोड़ा सा हम रिकलेक्ट करते हैं हमारा 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो ये हमारा ट्रायंगल है। ट्रायंगल के बाहर एक लीनियर एंगल जो बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ एक्सटीरियर एंगल। दिस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज द सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ओके, बट और एक रूल ऐसा है कि दिस एक्सटीरियर एंगल is always greater than one remote interior angle, one of the remote interior angle. This exterior angle is always greater than one of its remote interior angle.
इंपॉर्टेंट रूल है, यूज करना पड़ सकता है। तो ये है हमारा सम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यू विल कम टू नो RS is the diameter of the circle. Point T lies in the exterior of the circle. Prove that RTS, angle RTS is an acute angle. Acute angle का मतलब है this RTS should be less than 90. करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। चलो आप मुझे फिगर में बताइए। आई विल टेक अ पॉइंट P over here. टेल मी क्या कंस्ट्रक्शन आप करोगे, व्हाट कंस्ट्रक्शन यू विल डू। अगर आप ध्यान से देखोगे देन विल कम टू नो ये जो P है ये मैं S को कनेक्ट करूंगा। यस ओ ये तो इंस्क्राइब्ड एंगल बन गया, और ये इंस्क्राइब्ड एंगल सेमी सर्कल के अंदर है। दैट्स व्हाई एंगल RPS will be 90 degree, and the reason is angle inscribed in a semicircle in a right angle is a right angle. Okay, तो ये तो मुझे मिल गया। But now if you see, observe this triangle PTS. For this triangle PTS, ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, एंगल RPS, what is this for triangle PTS? चलो बताइए। परफेक्ट, ऑब्जर्व कीजिए वो जो PTS ट्रायंगल है, फॉर दैट 90 डिग्री इज व्हाट, इट इज अ एक्सटीरियर एंगल। ओके, इट्स अ एक्सटीरियर एंगल। तो मैं यहां पे लिखूंगा दैट दिस RPS is an exterior angle for triangle PTS। और ये एंगल T और ये एंगल S ये रिमोट इंटीरियर्स हो गए। आप कौन सा एंगल यूज करोगे, T या S? You will use T। Okay, so now I can say that this exterior angle RPS is greater than one of its remote interior angle, that is none other than angle T। Oh, मैंने ये angle T, that is nothing but angle RTS को acute angle बना दिया। Sum is done। Got it everyone? सबको समझ में आ गया? Yes। Perfect। I'm very happy you're responding so well for this chapter। Good। Now let's talk about some secants की theories। देखो सीकेंट्स आइदर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट हो सकते हैं या सर्कल के बाहर। अगर सीकेंट सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट होगा तो उनके एंगल्स फॉर्म होंगे। तो इफ यू सी ओवर हियर, पहले फिगर में सीकेंट्स इंटरनली दे आर इंटरसेक्टिंग, तो देयर इज अ एंगल फॉर्मेशन। लेट अस कंसंट्रेट ऑन एंगल AMC। अगर मुझे मेजर ऑफ एंगल AMC फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल AMC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AC प्लस मेजर ऑफ आर्क DB। तो जब सीकेंट इंटरनली इंटरसेक्ट होते हैं तो हमेशा जो एंगल फॉर्म होता है उसके ऑपोजिट आर्क्स को ऐड करने का, ऑलवेज ऐड द ऑपोजिट आर्क व्हेन द सीकेंट्स आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली। बट अगर सीकेंट एक्सटर्नली बाहर इंटरसेक्ट हो तो वही आर्क आपको सबट्रैक्ट करने हैं। बट कैसे? बड़ा आर्क माइनस छोटा आर्क। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो जैसे ही सीकेंट एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर दिए
तो ये कौन सा एंगल बना? एंगल बी ए सी। अगर मुझे बीएसी का लेंथ फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ बड़ा आर्क दैट इज बीसी माइनस मेजर ऑफ छोटा आर्क दैट इज डीबी। ओके, इतना सिंपल है। तो देखो यहां पे एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर दिया सीकेंड ने, तो फॉर्मूला इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ बड़ा आर्क माइनस मेजर ऑफ छोटा आर्क। इतना सिंपल है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फिगर। measure of arc NS they have already given you 125. मेजर ऑफ आर्क EF उन्होंने दिया है 37। आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ आर्क NMS। मुझे पहले बताइए सीकेंड इंटरनली इंटरसेक्ट हो रहा है या एक्सटर्नली? यस, परफेक्ट। वेरी गुड। या तो मैं लिखूंगा एक्सटर्नली इंटरसेक्ट हो रहा है, तो अगर मुझे एंगल एनएमएस फाइंड करना है तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ बड़ा कौन सा है? एनएस। एंड मेजर ऑफ छोटा कौन सा है? ये। तो बड़े आर्क को छोटे आर्क के साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। 125 minus 37, it will give you 88. And finally, measure of angle NMS is 44 degree. मिल गया? Got it everyone? सबको समझ में आ गया? चलो अभी यहां पे ध्यान से देखते हैं। दो कॉर्ड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, अगर ये कॉर्ड को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये कॉर्ड बन जाएगा सेकेंड। तो दो सेकेंड इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां पे एंगल ए बी ई, देखो ये एंगल ए बी ई 108 डिग्री है। मेजर ऑफ आर्क ए ई इज 95 डिग्री। You need to find out measure of arc DC. Very simple. We are aware that if secants, if they are intersecting internally, we are going to add their arcs. But कैसे? कौन सा एंगल लेना है? आप एंगल लोगे ए बी ई, बिकॉज उसी का तो लेंथ दिया गया है। तो वी आर गोइंग टू टेक एंगल ए बी ई हाफ ऑफ, चलो ऐड करते हैं उसके ऑपोजिट आर्क। एंगल ए बी का ऑपोजिट आर्क है फर्स्ट एई प्लस दूसरा है डीसी। ए बी कितना है? 108। डीसी वी डोंट नो बट एई इज 95। दिस टू विल गेट मल्टीप्लाई विद 108। वो 95 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 216 के साथ एंड यू विल गेट द आंसर दैट इज 121 डिग्री। तो आपको मिल गया मेजर ऑफ आर्क डीसी। आपको लिखना है सेकेंड्स AC and DC intersect each other in the interior of the circle at point B, and that's why we are adding their opposite arc. Got it everyone? That's great. Students, now we are going to talk about the last concept of this lecture. देखते हैं क्या है? It's only the last concept. ध्यान से देखिए, ये है हमारा सर्कल, और इस सर्कल के अंदर जो एक क्वाड्रिलैटरल होता है वो एक स्पेशल क्वाड्रिलैटरल है। ये क्वाड्रिलैटरल के वर्टेक्स दे आर टचिंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, तो स्पेशल है। ओके, तो ये स्पेशल क्वाड्रिलैटरल को एक नाम है, उसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और इस साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है? सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 होता है।
That is angle A plus angle C is equal to 180 degree. वैसे ही ये दो भी ऑपोजिट एंगल्स है, इन दोनों ऑपोजिट एंगल का सम विल बी 180 डिग्री. बट अगर मैंने आपको बोला ये प्रूव करके दिखाइए, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस? लेट्स सी. तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री. वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत बार आया भी है. तो पहले मैं लिखूंगा कि मैंने एक सर्कल बनाया इन द गिवन पार्ट. ओके, उसके बाद मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बनाया, वो सब आपको गिवन में लिखना है. आपको क्या प्रूव करना है? आपको ये प्रूव करना है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, उसका सम कितना होता है? 180 डिग्री. सेम थ्योरी विद द रिमेनिंग ऑपोजिट साइड्स, उसका सम भी कितना होता है? 180. करेंगे, नो नीड टू वरी. तो पहले मुझे चाहिए एंगल ए. लुक एट दिस एंगल ए. अरे ये एंगल कोई नॉर्मल एंगल नहीं है, ये एंगल सरकमफेरेंस के ऊपर बना है. कम ऑन टेल मी, ये कौन सा एंगल है? Yes, it is an inscribed angle. And this inscribed angle is always half of its opposite. It is always half of its intercepted arc. और arc का नाम क्या है? BCD. Let that be equation number 1. तो चलो एंगल ए भी मिल गया. Now look at this angle C. Oh, ये भी सरकमफेरेंस के ऊपर बना है, और ये क्या है? ये भी inscribed angle है. An inscribed angle is always half of its intercepted arc. तो ये intercepted arc कौन है? BAD. तो हमें आर्क ए, एंगल ए भी मिला, एंगल सी भी मिला, बट दोनों के बीच में क्या है? प्लस. तो अभी हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे. That is angle A plus angle C is equal to measure of arc BCD plus measure of arc BAD. ये BCD और ये BAD, चलो बताइए सम क्या है? What will be the sum of BCD and BAD? BCD and BAD, perfect, perfect. And it is 360 degree. This 2 will get divided with 360 degree. The measure of arc A plus C will become 180 degree. Got it? Okay. ये A plus C तो सर आपको 180 डिग्री तो मिल गया, बट सर B plus D कैसे मिलेगा? मिलेगा. ध्यान से देखना, ये क्वाड्रिलैटरल है. इस क्वाड्रिलैटरल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चार एंगल को अगर आप ऐड करोगे कितना डिग्री मिलता है? 360 डिग्री. अभी मैं इस इक्वेशन में थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, C को A के बाजू में लाता हूं. ओ, A प्लस C का सम इज 180 डिग्री. Perfect. This 180 will get subtract from 360 and you have got one more pair as supplementary. Okay, got it everyone? सबको समझ में आ गया? Yes, similarly नहीं लिखना है, theorem में similarly लिखते नहीं. So thank you so much students. We have ended this geometry revision session and I hope that you have solved your queries, most of the queries. And we will see you very soon in the upcoming lectures. God bless you all, and it was wonderful to taking the lectures with you all. Okay, thank you so much. God bless you all.